ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ابوظہبی کے ولی عہد کے ہمراہ پاکستان پہنچا۔ معزز مہمان کی آمد پر اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ خیر مقدمی بینرز اور جھنڈے آویزاں تھے۔ ننھے بچوں نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ ولی عہد ابوظہبی شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ولی عہد کو نشان پاکستان دیا۔ ولی عہد کی غیر معمولی خدمات اور پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ ولی عہد ابوظہبی نے تجارتی، اقتصادی، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم سے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ابوظہبی کے ولی عہد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیاسی تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنا باعث اطمینان ہے۔ دورہ ازبکستان میں ریلوے لائن منصوبے پر بات ہوئی۔ منصوبے سے گوادر اور ابوظہبی کی بندرگاہ کو فائدہ ہوگا۔ ریلوے لائن منصوبہ خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کارکنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ۔ دونوں ممالک کے درمیان بینکنگ اور ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری سمیت تعاون کے 5 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی تقریب حلف برداری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے وزراء سے حلف لیا۔ 12 وفاقی وزیر، 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھایا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ حنیف عباسی، معین بٹو، مصطفیٰ کمال کو وفاقی وزیر بنایا، جبکہ سردار یوسف، اورنگزیب کچھی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج بھی وفاقی وزیر بنیں گے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شیزہ فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی کو بھی وفاقی وزراء کا قلمدان سونپا جائے گا۔ بیرسٹر عقیل ملک، رشید کھیلداس کوہستانی وزیر مملکت بنیں گے۔ طلال چودھری، عبد الرحمن کانجو، بلال کیانی، مختار بھرت وزیر مملکت بنیں گے۔ اون چودھری، وجیح قمر کو بھی وزیر مملکت کا قلمدان سونپا جائے گا۔ ڈاکٹر سید توقیر شاہ، محمد علی اور پرویز خٹک کو ایڈوائزر مقرر کیا جائے گا۔ 3 نئے وزراء تقریب میں نہ پہنچ سکے۔ 1 وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ عمران شاہ، شزرا منصب اور ارمغان سبحانی حلف نہ اٹھا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی ویڈیو لنک اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ART کے فوری ٹرائل رن کا حکم دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ پنجاب بھر میں 4 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شہر میں اینڈ ٹو اینڈ سسٹم متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم چھوٹے شہر میں رہنے والوں کا بھی حق ہے۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ اسلام آباد میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاستدانوں، بیوروکریٹس، وکلاء، صحافیوں اور ماہرین تعلیم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے نئے انتظامی یونٹس کے قیام سے متعلق چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کے کانسیپٹ پیپر کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کانسیپٹ پیپر میں دی گئی تجاویز پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ گول میز کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے گول میز کانفرنس کا انعقاد۔ گورننس، تعلیم، صحت، امن و امان کے مسائل کے حل کے لیے چھوٹے انتظامی یونٹس ناگزیر قرار۔ میاں عامر محمود کا انتظامی یونٹ سے متعلق کانسیپٹ پیپر کانفرنس میں پیش۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان میں تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر اور گورننس جیسے بڑے مسائل ہیں۔ نظام انصاف میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نئی سیاسی لیڈرشپ
का भी फुकदान है। आम शहरी का मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए सूबों यानी नई इंतजामी यूनिट्स को छोटा करना नागुजीर हो चुका है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मियां आमिर महमूद ने कहा कि सूबों को इंतजामी बुनियादों पर छोटा करने से आम आदमी की जिंदगी बदलेगी, नई सियासी क़यादत फले फूलेगी और मजीद यूनिट्स बनने से इंतजामी कॉस्ट कम होगी। जब तक हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा नहीं करते, इनको गवर्नेबल नहीं बनाते, क्योंकि सूबे ने तालीम देनी है, सूबे ने हेल्थ देनी है, सूबे ने इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सूबे ने लॉ एंड ऑर्डर देना है, सूबे ने इंसाफ देना है, तो काम तो सारे के सारे सूबे के पास है। और हमारे जो सूबे हैं माशाल्लाह वो दुनिया के मुल्कों से बड़े हैं। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का मसला मुआशी नहीं बल्कि इंतजामी है। मुल्क में सूबों की डिमांड मौजूद है, वक्त की जरूरत है कि नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरमीम की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं और इस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के 4 सूबे, इनको मज़ीद नए सूबों में या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में तकसीम किया जाए। इस मौका पर साबिक वजीर तालीम पंजाब मियां इमरान मसूद ने कहा कि मजीद सूबे बनने को मनफी रंग देने की बजाय इसे मसाइल के इंतजामी हल के तौर पर देखा जाए। अगर इस मॉडल को आप एक्सेप्ट कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर आजकल की हुकूमत जो इस मुल्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं PDM की शक्ल में, और तभी तो जाके आईनी तरमीम हुई है, और अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह इकट्ठी रहें तो ये सूबों की तरमीम करना कोई दैट विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत में मजीद सूबे बनने के बाद नए यूनिट्स की GDP ग्रोथ में खातिर खा इजाफा हुआ। इस बात का इदराक तो है कि पाकिस्तान में नए सूबों की जरूरत है, मगर इस पर बात नहीं की जाती। शुरका ने मियां आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को बारिश का पहला कतरा करार दिया। मैं समझता हूँ बारिश का पहला कतरा है कि आपने लोगों को अवेयरनेस दी कि इस निज़ाम की वजह से क्या हो रहा है, और ये कोई मुकद्दस नहीं है सेक्रेट के जी बन गया तो भी डिवाइड ही नहीं हो सकता। लोगों को बताया जाए कि आपके ये हकूक़ हैं, अगर ये डिवाइड हुए, छोटे सूबे बने तो आपको ये फ़ायदा होगा। पीपल विल रेज द वॉइस। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के शुरका की अक्सरियत ने इत्तेफाक किया कि मौजूदा इंतजामी ढांचे की रिस्ट्रक्चरिंग के बगैर मुल्क के मौजूदा मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इस बहस का आगाज हो चुका, जिसे अब अवाम में ले जाने की जरूरत है। के मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम की नवाज शरीफ से पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुलाकात। ANP के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान ने नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर भरपूर सियासी किरदार अदा करने का आज़म दोहराया। जाहिद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और कायद नवाज शरीफ का नज़रिया और प्रोग्राम ही पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मौजूदा मसाइल से निजात दिलवा सकता है। नवाज शरीफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कई अरसों से जारी दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन और सुकून लौटाया और मुल्क के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए, जिनकी बदौलत अवाम को फ़ायदा पहुंचा। लवारे टनल जैसा मंसूबा जो कि सफ़ेद हाथी बन चुका था, उसे नवाज शरीफ ने मुकम्मल करवा कर चित्राल के अवाम के लिए बेहतरीन सहूलत फराहम की। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी को सराहते हैं और अपने सूबे में भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख्वाह हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए उन्हें पार्टी में खुशामदीद कहा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MQM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है, वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। MQM वापस आ गई है। रमज़ानुल मुबारक के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो 2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात 2017 के बाद नहीं अदा हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है, नाइंसाफ़ी होती है। वफाकी हुकूमत का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। MQM पाकिस्तान वापस आ गई है और रमज़ान के बाद ये बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मुत्तहिदा की अवाम में कोई हैसियत और वजूद नहीं रहा। फारूक सत्तार की सियासत अब कुछ नहीं रह गई। वो नफरत फैलाने, बोरीबंद लाशने, आग लगाने और फसाद की सियासत करना चाहते हैं। अवाम ने फारूक सत्तार की जमात को पैगाम देना था, वो पहुंचा दिया है। जिन्होंने उन्हें पहली बार मेयर बनवाया वो उनके साथ नहीं रहे। ये वही फारूक सत्तार साहब थे ना जिन्होंने कहा था कि जब अगर ये हुआ तो हम ये आग लगा देंगे और ये कर देंगे। फिर एक हमारे साथ बैठे और हमने कहा कि जिन लोगों को आपने तरगीब दी आग लगाने की वो सारे जेल में पड़े थे। तो फारूक सत्तार साहब में इतनी थी तो अब उनको छुड़वाने के लिए आते ना, उनके लिए वकील तो करें। जिनको वरगलाने में फारूक सत्तार साहब की और उनकी पार्टी का हाथ था कि आग लगाओ, जलाओ करो, घेराव कराओ, एक दफ़ा फिर शहर में नस्ली फसादात कराओ, एक दफ़ा फिर शहर में लसानी फसाद कराओ। फिर हुकूमत जब उनके बंदे पकड़े फिर फारूक सत्तार साहब कैसे चुप होकर बैठ गए। जो फर्स्ट टाइम मेयर बनाया था फारूक सत्तार साहब को, जिन्होंने इनको आज ये सियासी पोजीशन में पहुंचाया था, वो उसके साथ नहीं रहे सच्चे, तो वो आपके मेरे साथ क्या रहेंगे। हमारा पूरा हुकूमत का फोकस यही है कि हम पब्लिक को रिलीफ देने के लिए जितने भी अहम हमारे चीज़ें हैं उस पर हम काम करें। आज मंजूरी दी है कि 2.5 लाख और घरों को हुकूमत सिंध 2.5 लाख मज़ीद घरों को सोलर एनर्जी की वो प्लेट्स देने जा रही है। जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये मैं ख़ास तौर पे खुशखबरी समझता हूँ कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स देने जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमग़ान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीक़ कर दी। पुलिस ने मुलज़िम अरमग़ान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। दूसरी जानिब मुलज़िम अरमग़ान के मुलाज़मीन ने अदालत में सारी कहानी बता दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमग़ान और शिराज को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुलज़िम अरमग़ान ने कहा कि खाने के लिए नहीं दिया जा रहा, पुलिस एहलकार मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पुलिस की तहवील में नहीं दिया जाए, 10 दिन से वॉशरूम जाने नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि 10 दिन वॉशरूम जाने नहीं दिया जाए, ऐसा होता तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलज़िम अरमग़ान के घर से जिस लड़की के खून के नमूने मिले थे उसको ट्रेस कर लिया है और बयान रिकॉर्ड करना है। अदालत ने वकला और वालिदैन को कमरा अदालत में मुलजिम से मुलाकात करने की हिदायत करते हुए मुलजिम अरमग़ान और शिराज की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक़ कर दी। अदालत ने मुलजिमान के मेडिकल करवाने का भी हुक्म दिया। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमग़ान के मुलाज़मीन गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब के 164 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। दोनों गवाहान ने मुलजिम अरमग़ान और शिराज को शिनाख्त कर लिया। गवाह गुलाम मुर्तज़ा ने अदालत को बताया कि वो अरमग़ान के घर सफाई का काम करता था, मुलाज़मीन घर की ज़ेली मंजिल जबकि मालिक ऊपर की मंजिल पर रहते थे। जब काम होता था तो बॉस हमें बुलाते थे, घर का गेट रिमोट से खुलता था, हमें बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। गवाह ने कहा कि 6 जनवरी को रात 9 बजे ब्लैक ट्राउजर में मलबूस दुबला पतला लड़का आया था जो ऊपर चला गया। कुछ देर बाद शोर शराबा, गालियां देने की आवाजें और फिर फायरिंग की आवाजें आईं। थोड़ी देर बाद बॉस ने बुलाया और कहा कपड़ा और शावर लेकर आओ। बॉस ने हमसे खून साफ करवाया। रात 1 बजे देखा तो लड़का और उसकी गाड़ी मौजूद नहीं थी। अगले दिन दोपहर 1 बजे दरवाजा बजने पर देखा तो बॉस और चश्मे वाला दोस्त मौजूद थे। बॉस ने हमें ऊपर बुलाया और कहा खून के निशानात अच्छे से साफ करो। 1-2 दिन बाद बॉस ने हमें छुट्टी दे दी थी। 8 फरवरी को पुलिस ने छापा मारा, तब हम घर पर ही मौजूद थे। हम छुपकर निकल गए थे। 10 फरवरी को सामान लेने वापस आए तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पूछगछ के बाद बंगले ले गई। हमारी निशानदही पर पुलिस ने खून के नमूने लिए। अदालती इस्तफसार पर गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुलजिम अरमग़ान की जानिब उंगली से इशारा करके बताया कि ये हमारे बॉस हैं और साथ में वो चश्मे वाला लड़का है जो घर पर मौजूद था। दूसरे गवाह ज़ुहैब ने अदालत को बताया कि 5 जनवरी को किसी काम से ऊपर की मंजिल पर गया तो वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। 6 जनवरी को ब्लैक गाड़ी में मुस्तफ़ा नामी शख्स घर आया जिसने चेहरा ढांपा हुआ था। अगले रोज बॉस ने सफाई के लिए ऊपर बुलाया तो वहाँ एक ट्राउजर भी था जिसको एक थैली में डालकर रख दिया था। 10 फरवरी को पुलिस ने हमारी निशानदही पर खून के निशानात वाले कारपेट के टुकड़े निकाले। पुलिस ने हमारा बयान लिया और छोड़ दिया। गवाह ज़ुहैब ने भी अदालती इस्तफसार पर मुलजिम अरमग़ान और शिराज को शिनाख्त किया। अदालत में गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाने के दौरान मुलजिम कमरा अदालत में हंसता रहा। बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद मुलजिम अरमग़ान ने तफ्तीशी अफसर और गवाहान को थम्स अप का इशारा भी किया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम अरमग़ान के वालिद की कमरा अदालत में मौजूदगी पर एतराज करते हुए कहा कि मुलजिम का वालिद गवाह को धमका रहा है। अदालत ने कहा कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। कमरा अदालत में किसी को दाखिले से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए हैं।
اسی کیس کے حوالے سے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ DIG CIA مقدس حیدر سربراہ مقرر۔ خصوصی ٹیم گرفتار ملزم ارغمان کے حوالے سے تفتیش کرے گی۔ ملزم ارغمان کے دیگر دوستوں کے حوالے سے بھی چھان بین کی جائے گی۔ منشیات فروشی میں ملوث افراد کی شناخت اور گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔